નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો પાટનગર નેટવર્ક ન્યૂઝ। આપની સાથે હું છું લવલીન। બુલેટિનની શરૂઆત સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચારોની સાથે। મહાકુંભમાં જે અનિચ્છનીય ઘટનાનો ભય હતો અને એ જ થયું છે। મૌની અમાવસ્યા પર સ્નાન કરતા પહેલા સંગમ સ્થળ ઉપર ભીડના કારણે નાસભાગ મચી ગઈ હતી। ભાગદોડમાં અત્યાર સુધીમાં 10 લોકોના મોતની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। સંતોએ શરૂઆતથી મેળો સેનાને સોંપવાની માંગણી કરી હતી। સંગમ સ્થળ પર સ્નાન માટેનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્થળ માનવામાં આવે છે। મોટી સંખ્યામાં લોકો ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને રાત્રિ દરમિયાન 1:30 વાગ્યાની આસપાસ અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો। બગદડ મચી ગઈ હતી અને એમાં બગદડમાં લગભગ 50 જેટલા લોકોના ઘાયલ હોવાના સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે। જો કે ત્યાંના પ્રશાસને હજુ સુધી આંકડો રજૂ નથી કર્યો, પરંતુ જે રીતે ત્યાંથી માહિતી સામે આવી છે, લગભગ 10 લોકોના મોતના સમાચાર સામે આવ્યા છે। જો કે પરિસ્થિતિને કાબુ લેવા માટે પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા, પરંતુ ગઈ મોડી રાત્રે જે રીતે ભગદોડનો આ માહોલ સર્જાયો હતો। મૌની અમાવસ્યાને લઈને મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ત્યાં સ્નાન કરવા માટે આવી પહોંચ્યા હતા, પરંતુ એકાએક ભગદોડ મચી। તો મહાકુંભમાં બગદોડ બાદ તંત્ર હવે એક્શનના મોડમાં આવ્યો છે। પ્રયાગરાજમાં આવતા તમામ રોડ રસ્તાઓ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે। કુંભની અંદર છે તે અંદર અને બહાર છે તે બહાર જ રહેશે। સ્થિતિ નિયંત્રણમાં ન આવે ત્યાં સુધી સરકારનો આ નિર્ણય સામે આવ્યો છે। પ્રયાગરાજની સીમામાં એન્ટર થતા વાહનોને પણ અટકાવવામાં આવી રહ્યું છે। અફરાતફરીનો જે માહોલ સર્જાયો છે તે સ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવા માટે પ્રશાસને જે રીતે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। આ વચ્ચે તમને જણાવી દઈએ કે તમામ વાહનોને અટકાવવામાં આવી રહ્યું છે। દારગંજ રેલવે સ્ટેશન સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવ્યું। તો બીજી તરફ મહાકુંભમાં થયેલી ભીડને લઈને સીએમ યોગીએ લોકોને અપીલ કરી છે। કહ્યું છે કે અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપો, સંગમ ઘાટ જવાનું ટાળો। સીએમ યોગી આદિત્યનાથે તમામ લોકોને અપીલ કરી છે જે ઘાટની નજીક છો ત્યાં જ સ્નાન કરી લો તેવું સીએમ યોગી આદિત્યનાથે તમામ લોકોને અપીલ કરી છે। તો સાથે જ તંત્રના આદેશનું પાલન કરવા માટે પણ શ્રદ્ધાળુઓને અપીલ કરવામાં આવી છે। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर શિવસેનાના પ્રવક્તા આનંદ દુબેએ યોગી સરકારની કામગીરીને લઈને અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે। તેમને ભાજપ સરકાર પર આક્ષેપો પણ કર્યા છે। સાંભળીએ। कल देर रात प्रयागराज के महाकुंभ स्थान पर ये जो भगदड़ मची है और उसमें करीब 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। सबसे पहले जो मृत हुए हैं उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ एक सवाल उठाते हैं कि जब देश और दुनिया को पता है कि आज मौनी अमावस्या है, आज के दिन श्रद्धालु भारी तादाद में प्रयागराज के तट पर आएंगे और स्नान करेंगे, तो उनकी पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा क्यों नहीं की गई। जब मीडिया में खबरें आ रही हैं, लोग बातचीत में कह रहे हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, तो प्रशासन को सिर्फ पुलिस के भरोसे क्यों बैठना पड़ा, सेना की मदद क्यों नहीं ली गई। हमारी भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि बड़े से बड़े आयोजन को कर सकती है। जब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग एक जगह, सीमित जगह अगर इकट्ठे होंगे तो हो सकता है कि वहाँ भगदड़ हो सकती है। इससे पहले भी हुआ है, पहले प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक के कुंभ में हुआ है। तो सरकार ने क्या सबक ली। आज हमारे जितने श्रद्धालु अपनी जान गंवा रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है। हम तो अभी भी योगी आदित्यनाथ जी से, अमित शाह जी से निवेदन करेंगे कि आप महाकुंभ की व्यवस्था को सेना के हवाले कर दीजिए, तभी लोगों की जान बचेगी, तभी अच्छे से सब कुछ होगा। प्रशासन केवल वीवीआईपी लोगों की सेवा में लगा है, आम इंसान की जिंदगी का कोई उनके लिए मोल नहीं है क्या। इतना बड़ा कुंभ, ये हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्थाओं पर ही ये सब क्यों होता है। जब दुनिया को पता है कि ये महाकुंभ में 40-50 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे, आज के दिन तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, तो पूरी देखभाल क्यों नहीं की गई, क्यों वहाँ अस्पताल की, एम्बुलेंस की व्यापक व्यवस्था की गई। तो हम यही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, समय रहते ही सबक लीजिए, सेना के हवाले पूरी व्यवस्था कीजिए, पुलिस साथ में सहयोग करे चलेगा, प्रशासन के और भी लोग साथ में रहें। और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी अपनी जान, अपनी माल का देखभाल करिए। स्नान जरूरी है, हम सब जानते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी ज़रूरी है। तो स्नान करने से पहले अपने पूरे वातावरण को देख के, वहाँ भीड़ भाड़ को देखते हुए आप लोग वहाँ जाएं और अच्छे से स्नान करें। सभी साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए। हम सब यही चाहेंगे कि इतना अच्छा सब कुछ पर्व चल रहा था, आज मौनी अमावस्या के दिन ये जो दुखद घटना हुई है, उसके लिए हम सब बहुत दुखी हैं और शोकाकुल हैं। हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं न घटे, उसके लिए सरकार को सबक लेना चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि देश और दुनिया के सामने एक अच्छा संदेश जा सके।
મહકુમા થયેલી નાસભાગને લઈને અયોધ્યાના આઈજી રેન્જનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે. તેમણે પણ કહ્યું છે કે સ્થિતિ હાલ નિયંત્રણમાં છે, અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપો તેવું તેમના તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આવી રહ્યા છે. પ્રવીણ કુમાર કહી રહ્યા છે કે ટ્રાફિકની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. તો તેની સાથે સાથે જે રેન્જ આઈજીનું નિવેદન સામે આવ્યું છે, કારણ કે અફરાતફરીનો જે માહોલ ગત રાત્રિએ સર્જાયો છે મહકુમા નાસભાગને લઈને રેન્જ આઈજીનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું છે કે નિયંત્રણ માટે સુરક્ષાના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. પરિસ્થિતિ ઉપર ધ્યાન રાખો, અફવાઓ પર જે ધ્યાન ન આપો તેને લઈને તેમણે નિવેદન આપ્યું છે. देखिए, भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, पवित्र स्नान भी कर रहे हैं सरयू माँ में, और उसके पश्चात दर्शन की स्थितियां रहेंगी. देर रात तक भी काफी लोग आए हैं. कल और 2 दिन में जिस तरह का तांता रहा है वो हम आज भी इसका आकलन कर रहे हैं कि आज भारी संख्या में कुंभ से लौटने वालों का भी आगमन होगा. हम सबका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, संत समाज के लोगों के साथ संपर्क में हैं और मिलकर के कार्रवाई करा रहे हैं. ये अपने आप से भी अवध क्षेत्र के जो संभ्रांत लोग हैं उनके द्वारा भी इस तरह की आह्वान किया जा रहा है, और ये स्वागत योग्य आह्वान भी है कि जो पहली वरीयता हमारे दूर दराज के अंचल के लोग आ रहे हैं जो उनको दर्शन दिए जाए. हम लोग आसपास के लोग हैं, अगर दर्शन 10 दिन बाद भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. पहले दूर दराज के हमारे जो लोग आ रहे हैं उनको वरीयता दी जाए ताकि वो सुगमता से दर्शन कर सकें. और हम लोग सारी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसको कर रहे हैं. ट्रैफिक रेगुलेशंस भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, होल्डिंग एरियाज भी किए गए हैं, और व्यवस्थित रूप से लोगों को ला करके दर्शन कराने की कार्रवाई की जाए. सुरक्षा सर्वोपरि है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने जो स्कीम्स हैं डाइवर्जन की वो भी लागू की. यहाँ पर थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से, क्राउड कंट्रोल के हिसाब से समय समय पर फोर्स हम लोग रेगुलेट भी करते हैं, और स्थानीय जैसी जैसी आवश्यकता होती है वहाँ फोर्स की तैनाती. અખિલ ભારતીય અખાડા પરિષદના પ્રમુખ રવિન્દ્ર પુરીનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. અખાડાઓ આજે સ્નાનમાં ભાગ નહીં લે તેવું તેમના તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે. આજના બદલે વસંત પંચમી પર સ્નાન કરવામાં આવશે. રવિન્દ્ર પુરી તરફથી નિવેદન સામે આવ્યું છે. ઘટના એટલા માટે બની કારણ કે ભક્તો સંગમ ઘાટ પર જવા માંગતા હતા. ભક્તોએ જ્યાં પવિત્ર ગંગા વહે છે ત્યાં જ સ્નાન કરવું જોઈએ. નિવેદન સામે આવ્યું છે અખિલ ભારતીય અખાડા પરિષદના પ્રમુખનું. તેઓએ કહ્યું છે આ ઘટનાથી અમે દુઃખી છીએ. હજારો ભક્તો અમારી સાથે હતા. જાહેર હિતમાં અમે નિર્ણય લીધો છે. અખાડાઓ આજે સ્નાનમાં ભાગ નહીં લે. અમારી પણ લોકોને અપીલ છે કે તેઓ આજના બદલે વસંત પંચમી પર સ્નાન કરવા માટે આવે. આ ઉપરાંત આ ઘટના એટલા માટે બની કારણ કે ભક્તો સંગમ ઘાટ પર જવા માંગતા હતા. તેના બદલે તેઓએ પણ પવિત્ર ગંગા જ્યાં છે ત્યાં જ સ્નાન કરવું જોઈએ. વહીવટી તંત્રનો કોઈ વાંક નથી. આમાં કરોડો લોકોનું સંચાલન કરવું એ પણ સરળ નથી. આપણે અધિકારીઓને સહકાર આપવો જોઈએ તેવું અખિલ ભારતીય અખાડા પરિષદના તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે. રવિન્દ્ર પુરીનું નિવેદન સામે આવ્યું. कि आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है. और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे, और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे. हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे. जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे. देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें, और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें. हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है. इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे. नहीं, हमारा कोई रोष नहीं. देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है. जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है. हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए. તો બીજી તરફ પ્રયાગરાજમાં બની ઘટનાને લઈને સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિએ ભગદોડને લઈને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. જે થયું તે યોગ્ય નથી થયું તેવું નિરંજન જ્યોતિ કહી રહ્યા છે. પ્રયાગરાજમાં જે ઘટના બની તે ઘટનાને લઈને સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું. તે પણ સાંભળીએ. अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है. जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है. उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है.
उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकता। साजिश है कि जांच का क्या है, वो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है, अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पिक्चर देखेंगे तो जहाँ मैं कथा करती हूँ वहाँ आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं, बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान करें। આધ્યાત્મિક ગુરુ દેવકી નંદન ઠાકોરનું પણ મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। આજે હું સંગમ ઘાટ પર નહોતો ગયો કારણ કે ત્યાં ઘણી બધી ભીડ હતી। ગંગા અને યમુનાના સંગમ પ્રવાહમાં અમૃત વહી રહ્યું છે। ગંગા કે યમુના ક્યાં પણ સ્નાન કરશો તો અમૃત મળશે, જરૂરી નથી કે તમારે સંગમમાં જ ડૂબકી મારવી પડે તેવું દેવકી નંદન ઠાકોરે નિવેદન આપ્યું। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय माँ भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। प्रयागराज संगम से आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है, जहाँ भी आपके पास गंगा। તો બીજી તરફ મહાકુંભમાં સર્જાયેલી ઘટનાને લઈને બાબા રામદેવે પણ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે। તેમણે પણ કહ્યું છે કે અમે ઘાયલ લોકો માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। બાબા રામદેવે જે રીતે નિવેદન આપ્યું છે, ઘાયલો જલ્દીથી સ્વસ્થ થાય તેવી પ્રાર્થના છે। તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે જે રીતે અમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ, સાથે જ બાબા રામદેવે જે રીતે નિવેદન આપ્યું છે દુઃખ વ્યક્ત કરતા જોવા મળ્યા। ઘાયલો માટે તમામ દેવી શક્તિઓને પ્રાર્થના કરી છે તેવું યોગ ગુરુ બાબા રામદેવે નિવેદન આપ્યું છે, તે પણ સાંભળી લઈએ। मौनी अमावस्या का विधि विधान से बहुत ही एकांतिक रूप से स्नान किया है उन घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना के लिए जो तीर्थराज प्रयागराज में थे, और उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए माँ भगवती गंगा से और सारी दैवी शक्तियों से प्रार्थना की। और ये जो हमारा सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको बहुत ही उत्सव के रूप में ना करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ, लोक मंगल के साथ, विश्व मंगल के साथ हमने और सभी अखाड़ों के जो श्रद्धेय पूज्य संत हैं उन महापुरुषों ने और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जो हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर ने, हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएँ और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षति